السلام علیکم، اسپیشل ٹی وی اسٹوڈیو سے مقامی معلومات کے ساتھ میں ہوں عدیل۔ عوامی پاکستان پارٹی کے شاہد خاقان عباسی نے پیکا ایکٹ کو آزادیوں کا گلا گھونٹنے کی کوشش قرار دیا۔ مفتاح اسماعیل نے لندن میں کہا کہ مہنگائی کم نہیں ہوئی اور شہباز شریف صرف کرسی بچانے میں لگے ہیں۔ محمود خان اچکزئی نے پیکا ایکٹ کی سخت سزا پر تنقید کرتے ہوئے عوامی مینڈیٹ چوری کی سزا پر سوال اٹھایا۔ ایس ایچ او تھانہ مصطفیٰ آباد حسن عمران کی قیادت میں پولیس ٹیم نے کارروائی کرتے ہوئے بدنام زمانہ منشیات فروش کو گرفتار کر لیا۔ ملزم کے قبضے سے 10 کلو گرام چرس برآمد کر کے مقدمہ درج کر دیا گیا۔ ملزم عرصہ دراز سے علاقے میں منشیات فروشی کے ذریعے نوجوان نسل کو تباہ کر رہا تھا۔ ڈی پی او قصور محمد عیسیٰ خان کی ہدایت پر مصطفیٰ آباد کو منشیات سے پاک کرنے کی مہم کامیابی سے جاری ہے۔ شورکوٹ کینٹ میں رفیقی چوک سے اسٹیشن چوک تک فٹ پاتھوں پر دکانداروں نے قبضہ جما رکھا ہے اور سڑکوں پر ریڑھی بانوں سے بھاری کرایہ وصول کیا جا رہا ہے۔ افضل روڈ اور دیگر مقامات پر ناجائز رکشہ اڈے اور ریڑھیاں ٹریفک جام کا سبب بن رہی ہیں۔ کینٹ بورڈ کے اہلکار فرضی کارروائیوں تک محدود ہیں، جبکہ بڑے دکانداروں کے خلاف کارروائیوں سے گریز کیا جاتا ہے۔ شہریوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے فوری طور پر تجاوزات کے خاتمے کا مطالبہ کیا ہے۔ لاہور پریس کلب کے ممبران اور ان کے اہل خانہ کو تعلیمی اور فلاحی سہولیات کی فراہمی کے لیے انٹرنیشنل میڈیا فورم اور لاہور پریس کلب کے مابین معاہدہ طے پا گیا۔ تقریب میں سی ای او انٹرنیشنل میڈیا فورم نعیمہ لشاری اور صدر لاہور پریس کلب ارشد انصاری نے مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے۔ معاہدے کے تحت ممبران کو 40,000 پاؤنڈ کی لائف انشورنس، معاشی طور پر کمزور ممبران کی مالی معاونت اور بیرون ملک تعلیمی سرگرمیوں میں مدد فراہم کی جائے گی۔ صدر ارشد انصاری نے نعیمہ لشاری کا شکریہ ادا کرتے ہوئے انہیں اعزازی ممبرشپ سرٹیفکیٹ دیا، جبکہ جوائنٹ سیکرٹری عمران شیخ کی کاوشوں کو بھی سراہا گیا۔ جھانیہ چک 106 ٹن آر میں گھریلو تنازع پر سسرالیوں نے مبینہ طور پر بہو پر تیزاب اور گرم چائے پھینک دی۔ خاتون بری طرح جھلس گئی۔ ڈی پی او خانے والے کے نوٹس پر شوہر، سسر اور نند کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر دیا گیا۔ سمندری میں ڈسٹرکٹ سپورٹس آفیسر ساجدہ لطیف کی زیر نگرانی پاکستان آرمی کے نیشنل فٹ بال پروگرام کے تحت 448 گاف بے لاشاران گراؤنڈ میں انڈر 16 ٹیموں کے ٹرائلز منعقد ہوئے۔ نوجوان کھلاڑیوں کی بھرپور شرکت ہوئی۔ منتخب کھلاڑیوں کو تحصیل اور ڈسٹرکٹ لیول پر میچز کھیلنے کا موقع ملے گا۔ ڈسٹرکٹ سپورٹس آفیسر اور سپورٹس انچارج نے کھلاڑیوں کو ٹی اے اور ریفریشمنٹ بھی فراہم کی۔ صوبائی وزیر قانون و تعمیرات پنجاب ملک صہیب احمد نے رات کے 7 گھنٹے تک لاہور اور گجرانوالہ ڈویژن کے اضلاع کا دورہ کیا۔ زیر تعمیر شاہراہوں، بی ایچ یوز، فلائی اوورز اور سٹیچنگ یونٹس کی اچانک مانیٹرنگ کی گئی۔ اوور لوڈنگ پر ڈی سی حافظ آباد کو فوری ایکشن لینے کی ہدایت دی گئی۔ مختلف منصوبوں پر عدم اطمینان پر 3 دن کی مہلت بھی دی گئی، جبکہ تعمیراتی معیار کو بہتر بنانے کے لیے سخت وارننگز بھی جاری کر دی گئیں۔ صوبائی وزیر نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی قیادت میں ترقیاتی منصوبے تیزی سے جاری ہیں تاکہ عوام کو ریلیف فراہم کیا جا سکے۔ لیسکو وابڈا نے پنجاب پولیس اور رینجرز کے ساتھ سرائے مغل میں بجلی چوروں کے خلاف گرینڈ آپریشن کیا۔ درجنوں گھریلو کنیکشنز اور ٹیوب ویل کی ڈائریکٹ سپلائیاں منقطع کی گئیں۔ بجلی چوروں کے میٹرز، ایل ٹی کیبلز اور ٹرانسفارمرز بھی اتار لیے گئے، جبکہ متعدد افراد کو گرفتار کر کے مقدمات درج کر دیے گئے۔ ایس ڈی او وابڈا کا کہنا ہے کہ بجلی چوروں کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں جاری رہیں گی۔ شمع ماڈل سکول منشن آباد کی طالبہ ام ایمن تشدد کے باعث ذہنی طور پر مفلوج ہو چکی ہیں۔ والدین علاج کے لیے در بدر پھرنے لگے۔ مزید تفصیل بتائیں گے چودھری محمد اسماعیل۔ جی اسماعیل بتائیے گا۔ جی بالکل، ایک بار پھر سے آج میں اسی گھر کی دہلیز پر موجود ہوں جہاں پر گزشتہ 2 ماہ پہلے ایک کامسن بچی پر شمع ماڈل سکول منچنا آباد کی جانب سے تشدد کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے بچی کی حالت غیر ہو گئی۔ اور یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں ناظرین کہ بچی کو انصاف دلانے کی بجائے الٹا بچی پر ہی حد تک عزت 50 لاکھ روپے کمسن بچی 7 سال کی پر عدالت میں دعویٰ دائر کر دیا گیا ہے۔ الٹی گنگا بہ رہی ہے۔ کیا یہ دباؤ کے لیے معاملات کیے گئے ہیں؟ کیا ان کی آواز دبانے کے لیے کیا گیا ہے؟ اور صحافیوں کو بھی نامزد کر دیا گیا ہے 50 لاکھ جرمانے پر کہ صحافی ایک مظلوم کی آواز کیوں بنے۔
या सहाफ़ियों ने मज़लूम की आवाज़ आला हुकाम तक क्यों पहुंचाई है? वीडियोस भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, आप देख रहे हैं। प्रिंसिपल इरफान शाह साहब शमा मॉडल स्कूल खुद एतराफ़ जुर्म कर रहे हैं कि बच्ची पर टीचर ने तशद्दुद किया था। मेरे स्कूल में 30 से 35 टीचर फीमेल जो बच्चों को तालीम देती हैं, और मैंने वो उस टीचर को स्कूल से फारग कर दिया, निकाल दिया है। आप जाने, वो टीचर जाने, प्रिंसिपल साहब खुद इतराफ़ जुर्म कर रहे हैं और तैश दिलवा रहे हैं बच्ची के वालिदैन को कि मैंने टीचर को स्कूल से फारग कर दिया है, आप जाकर उसके सीने पर गोली मारें, उसके टुकड़े कर जाएं। तो क्या प्रिंसिपल साहब, मैं आपसे ये सवाल करता हूँ कि आपके स्कूल में आप फंड ले रहे हैं, आप पैसे हड़प कर रहे हैं, तो टीचर अगर बच्ची पर तशद्दुद करती है तो आपके स्कूल में उसने किया है, वालिदैन को तैश दिला रहे हैं इंसाफ देने की बजाय। वालिदैन से जानते हैं क्या, मार नहीं प्यार वाला जो हुकूमत पंजाब का वो नारा है, क्या वैसे के वैसा ही है? क्या इनको इंसाफ मिला है, नहीं मिला? क्या महकमा फाउंडेशन की जानिब से इन्हें कोई इंसाफ मिला है? इनकी क्या कार्रवाई की गई है? अभी तक 2 माह गुजर जाने के बावजूद भी इनके साथ क्या मामला तय कुछ तय हुए हैं? क्या प्रिंसिपल साहब ने इनको मुतमईन किया है? क्या वो स्कूल अभी भी ओपन है और आज भी वो स्कूल जो है वो फंड ले रहा है? तो इस बारे में हम जानते हैं, हमारे साथ बच्ची की वालदा मौजूद हैं, उससे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आजी वालेकुम सलाम। अच्छा, क्या मार नहीं प्यार वाला एक नारा है हुकूमत पंजाब की जानिब से कि बच्चे को अगर स्कूल में तशद्दुद किया जाता है तो उसकी FIR होगी? क्या अभी तक आपकी थाना मिंचनाबाद में FIR हुई है, नहीं हुई? नहीं जी, नहीं, कोई नहीं होई, साडी कोई सुनदा ही नहीं। ਅਸੀਂ ਜਾਣੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਬਹਿ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨਾ थाने वाला कोई भी नहीं सुनता पिया, तो ना ही हुई है कोई कार्रवाई। अच्छा, थाने वालों ने अभी तक मार नहीं प्यार वाली आपकी FIR नहीं दी? नहीं जी। अच्छा, कहा जाता है कि रियासत माँ जैसी है, क्या हाँ। एक माँ तो वो होती है जो सगी माँ होती है और एक माँ होती है जो सुतेली माँ होती है? क्या कहना चाहेंगी आपके साथ इस रियासत में, इस पंजाब में सुतेली माँ वाला सलूक किया जा रहा है? हाँ जी, बिल्कुल सुतेली माँ वाला सलूक किया जाता है। अभी कोई साड़ी नहीं सुनता पिया, कोई FIR नहीं हुई, कोई कुछ नहीं होया। क्या जो महकमा फाउंडेशन वाले, जो PEF वाले इदारे हैं, उन्होंने भी कोई नोटिस अभी तक नहीं लिया? नहीं जी, कोई नोटिस नहीं लिया। अच्छा, वो स्कूल अभी भी ऐसे ओपन है, स्कूल में बच्चे वो ज़ेर तलीम हैं? हाँ जी, बिल्कुल पढ़ते पैन, स्कूल ओपन है, पढ़ते पैन बच्चे। कोई नहीं, कोई ऐसी कोई कार्रवाई नहीं, कोई कुछ नहीं, ना ही सानू किसी आखा या थे भी आ तोड़ा। अभी तक आपको कोई वजीर आला के दफ्तर से या ये जो PEF वाले इदारे हैं इनकी जानिब से जो कमेटी तश्कील दी गई थी, जो इंक्वायरी चाह रही थी, उनकी जानिब से अभी तक आपको कोई रिलीफ नहीं मिला है? नहीं जी, काला आईया हैं, 2-3 जगह तो काला आईया, सानू फोन आए हैं, वजीरे पंजाब तो भी फोन आया है, वजीरे आला पंजाब मरियम नवाज दे दफ्तर तो भी फोन हाँ जी आया है। वो मैडम ने गल की है, उन्हें आखा है थानू कोई इंसाफ या कोई तरह। वजीरे आला मरियम नवाज साहबा और वजीर तलीम राना सिकंदर आजाद साहब, यकीनन एक माँ है, उसकी आंखों से गिरते आंसू, उसके दिल का दर्द यकीनन वही जानता है कि जिसके साथ गुजरती है। कहते हैं कि जिस जगह पर आग जलती है सेका वहीं पर लगता है। एक तो इनको इंसाफ नहीं मिल रहा, उल्टा से प्रिंसिपल साहब इरफान शाह साहब शमा मॉडल स्कूल इनको तैश दिला रहे हैं कि आप वो टीचर जाने, आप जाने, मैंने उसको स्कूल से फारग कर दिया है, बच्ची के साथ उसने तशद्दुद किया था इसलिए मैंने स्कूल से निकाल दिया है, अभी आप उसके टोटे कर दें। एक माँ की आप फरियाद सुन रहे थे, हमारे साथ बच्ची के वालिद भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं कि वो इस मामले में क्या कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। अच्छा, क्या कोई इंसाफ मिला है आपको? नहीं जी, कभी भी नहीं इंसाफ मिला, कोई इंसाफ नहीं मिला है आपको? नहीं जी, नहीं। अच्छा, आपको कोई कॉल वगैरह प्रिंसिपल ने की हो, किसी महकमे की आई हो? प्रिंसिपल ने भी की है, महकमे ने की। अच्छा, प्रिंसिपल ने कॉल की है आपको? हाँ जी, क्या कहा है कॉल करके? कि मैं तो ना मेरी बीवी मारा है ना मैं मारा है, और मैडम ने जिन्हें मारा उन्हें स्कूल काट दिता है, जाते उन्हें गोली मार, उनके प्यो ते परचा करा या उनके ते करा, उन्हें गोली मार ते मार दे। अच्छा, उल्टा आधा
الٹا आपको एक तो पहले आप अपनी बच्ची की परेशानी में ऊपर से जो टीचर के खिलाफ भड़का रहे हैं कि उसको गोली मार दो, हाँ जी, ताकि ये मजीद और परेशानियों में जाएं। परेशानियों में जाएं। और क्या काल करके क्या कहा आपको उसने यही कहा ना, हाँ जी, परे विच भी ये गल हुई। उसने ये नहीं कहा कि हम मामलात को सुलझा लेते हैं? नहीं 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 जी नहीं, वो इस तो इलावा वो लोगों को आख देन पर भौंकदा फिरे टीचर जाने तो। अच्छा, ये भी है कि आपके खिलाफ अदालत में वो गए हैं, वहां पर आपके खिलाफ हद तक इज्जत का जो 50 लाख रुपए का इस बच्ची के खिलाफ, आपके खिलाफ, और मैं बंदा ना चीज़ और एक निजी टीवी के जो नुमाइंदे हैं मनान अफजल पराचा, जिन्होंने आपकी आवाज़ बनी, उनके खिलाफ ही उन्होंने ये एक रेट दायर करा दी है। ये एक अनोखी मिसाल कायम कर दी है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ये दबाव के लिए है? हाँ जी, दबाव के लिए है। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਹੈ, ਇਥੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਮੈਂ ਗਰੀਬ, ਮੇਰੀ ਨਾ ਥਾਣੇ ਵਾਲੇ ਸੁਣਦੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਲਾਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣ ਦਿੰਦੇ। अच्छा, एक तो वजीर आला पंजाब का नारा है मार नहीं प्यार, तो क्या ये उल्टा गंगा बह रही है कि मार नहीं प्यार वाली FIR आपकी अभी तक थाना पुलिस ने नहीं जी नहीं, किसी ने नहीं दी। आप गए थाने में? हाँ जी, कितनी बार गए? दरखास्त 4-5 बार ही गए खड़े हैं जी। अच्छा, थाने के अलावा आपने DPO साहब को भी कोई दरखास्त है? हाँ जी, SP साहब नू, SHO साहब नू, DSP साहब नू, AC साहब नू, सारे नू दरखास्तां दित्तियां, लेकिन साडी सुनाई कोई नहीं हुई। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? आपके साथ सुतेली मां वाला सलूक किया? हाँ जी, हाँ जी। तो वजीर आला पंजाब मरियम नवाज और वजीर तलीम राना सिकंदर या साहब, आप बात सुन रहे थे, एक बेबस माँ की फरियाद सुन रहे थे, एक बाप की फरियाद सुन रहे थे। उनका क्या कहना है कि अभी तक हमारी थाना मिंचनाबाद में मार नहीं प्यार वाली FIR तक नहीं दी गई है, अभी तक हमें कोई इंसाफ नहीं मिला है, स्कूल वैसे का वैसे ही चल रहा है, वो अपने कारोबार में बिजी है, माँ बाप अपनी बच्ची को लेकर दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर है। तो क्या ये रियासत यकीनन एक सुतेली माँ वाला, सिर्फ जो माँ वाला सलूक है वो ताकतवरों के लिए है, और सुतेली माँ का जो सलूक है वो एक कमज़ोर के लिए है? यहाँ पर एक नहीं 2 कानून हैं, इस पर कब एक्शन होंगे, इस पर कब नोटिस लिया जाएगा, इस पर महकमा पेप जो फाउंडेशन वाले हैं कब इन एक्शन होंगे, इनको कब इंसाफ दिया जाएगा? इस बच्ची की जो तबीयत है वो दिन ब दिन यकीनन हालत बिगड़ती जा रही है, जिसकी वजह से उसकी ज़िंदगी और मौत की कशमकश में है। तो लिहाजा ये एक सवालिया निशान है हमारे इदारों पर, क्या गरीब इस रियासत में रहना छोड़ जाए? यहाँ पर गरीब क्या करे? तो इस तरह के मामला आगे भी दिखाते रहेंगे और मजलूम की आवाज़ हमेशा बनते रहेंगे। कैमरामैन टीम के साथ चौधरी मोहम्मद इस्माइल, स्पेशल TV मिंचनाबाद। बहुत शुक्रिया चौधरी मोहम्मद इस्माइल ने हमें अपडेट किया। मजीद तफसीलात से आपको आगाह करते चले। फैसलाबाद में थाना D टाइप कॉलोनी में 18 साल लड़की सबा को अगवा करके ज्यादती का निशाना बनाया गया। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए 4 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा दर्ज करके तहकीकात जारी है। CPO कामरान आदिल ने खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ को पुलिस का अवलीन फ़र्ज करार दिया। साहिवाल में जहाज ग्राउंड चौक में मजदूर बगैर हिफाजती आलात बिजली के पोल पर चढ़ गए, इंटरनेट केबल बिछाने पर मजबूर हैं। मजीद तफसील बताएंगे राना सद्दाम हुसैन। जी सद्दाम हुसैन बताइएगा। हमेशा जहाज ग्राउंड मौजूद है शाहीवाल। ये फुटेज में आपको नजर आ सकता है, स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा कि बंदा खंबे के ऊपर चढ़ा हुआ है वापडा के, बगैर हिफाजती आलात के केबल डाल रहे हैं इंटरनेट की। इसको अपनी जान की कोई परवाह नहीं। कुछ दिन पहले यहाँ पे शाहीवाल में एक हादसा रूनमा हो चुका है, जिसमें 2 प्राइवेट लोग करंट लगने की वजह से जल गए तो ट्रांसफार्मर के ऊपर। वापडा की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है कि ये शाहीवाल सिटी है, कोई देहात नहीं है। ये आपको नजर आ सकता है। वापडा हुकाम से अपील है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें, ये किसी की जान जा सकती है इस मामले में। जी बहुत शुक्रिया राना सद्दाम हुसैन ने हमें अपडेट किया। मजीद आपको बताते चले, साहिवाल में 186 नोएल गांव में सहूलियात का फुकदान, उबलते गटरों, बिजली की लटकती तारों, कूड़े क्रिकेट के ढेरों ने अहलियाने गांव की जिंदगी अजाब में मुब्तला कर दी। मजीद तफसील बताएंगे राना सद्दाम हुसैन। जी सद्दाम हुसैन बताइएगा। जी हम इस वक्त 186 नोएल मौजूद है। हड़प्पा का नवाई गाँव है। यहाँ पे अक्सरियत जो है इसी गाँव में नून लीग की है। नून लीग के कैंडिडेट हमेशा यहाँ से बड़ी लीड से कामयाब हुए हैं, और मतलब पूरे इलाके में ये बात मशहूर है कि ये गांव वाले जो हैं मियां नवाज शरीफ के ऊपर कुर्बानियां भी दे चुके हैं। लड़ाई झगड़े में इन लोगों ने अपने रकबे घर तक फरोख्त कर लिए हुए हैं।
ये इनकी मोहब्बत का आलम है नून लीग से। और कभी यहाँ का जो MPA साहबान है या MNA है, इलेक्शन वोटों से पहले यहाँ आते हैं इनकी लड़ाई झगड़े करवाने के बाद, उसके बाद गायब हो जाते हैं, ये जिधर जाएं पहाड़ में जाएं। लेकिन अब ये मसला इनका है कि यहाँ पे सीवरेज का निज़ाम नहीं है इस गांव में। कैमरामैन आपको दिखाता है कि इनका रास्ता भी नहीं है बेचारों का। जो 7 जमींदार हैं उन्होंने रास्ता भी बंद किया हुआ है और ये कचरे के ढेर आपको नजर आ रहे होंगे। एक तरफ तो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा की खुसूसी हदायत पर पूरे पंजाब में नाजायज तजावजात और साफ सुथरा पंजाब के लिए जोरों शोर से मुहिम जारी है। करोड़ों लाखों रुपए के फंड दिए जा रहे हैं। इस 186 नंबर गांव का कोई पुरसाने हाल नहीं है। आइए इन्हीं की ज़बानी जानते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। साडे जी कोई पानी की निकासी आद नहीं है, ना साडे कोल कोई रस्ता है, ना साडियां तारां बिजली दियां दीवारां नूं लगदियां पईयां ने। अगे बच्चा भी एक फौत हो गया बिजली लग के। साडी सलाह है कि सानू निकासी आद दा कोई जरिया बनावे या सानू कोई तारां साडियां जिहड़ियां मकानां छत्तां दीवारां नूं लगदियां ने वो बाहर वाली साइड से मुंतकिल कीतियां जान। दरखास्तां दित्तियां ने, साडी जी कोई सुनवाई नहीं है जी। साडे ना कोई राह है, ना कोई साडे इत्थे पानी की निकासी है जी। तारां ने साडे मकानां नूं लगदियां ने, जदों बारिश हुंदी है साडे करंट आवन लग पैंदा है। अगे जी तारां नाल एक बच्चा जी फौत हो गया जी। इत्थे जी साडी कोई नहीं सुनदा। असीं बड़ियां दरखास्तां भी अगे दित्तियां ने भी आ तारां कढ लो जा, साडे राह दी कोई नहीं सुनदा जी। ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਜਾਨ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਮਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਬਾਰਿਸ਼ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਉਦੋਂ ਥੱਲੇ ਬਿਜਲੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਜੀ ਮਕਾਨਾਂ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਵੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਉਹਦੀ। ਸਾਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਇਹ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਲਾਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਆਪੋ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਲਾਹ ਕਰੀ ਹੋ ਜਾਏ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। सदाम हुसैन ने हमें अपडेट किया। मजीद आपको बताते चलें, ओकाड़ा में IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के अहकामात पर पुलिस लाइन्स में जनरल परेड मुनक़िद हुई, जिसका मुआयना DPO ओकाड़ा मोहम्मद राशिद हिदायत ने किया। सलामी भी ली। ज़िलाई पुलिस, एलीट फोर्स, ट्रैफिक पुलिस और लेडी पुलिस के दस्तों ने हिस्सा लिया। DPO ने एहलकारों को जिस्मानी फिटनेस, महकमाना डिसिप्लिन और पेशा वराना अमूर में मेहनत और दयानतदारी की हिदायत दी। पुलिस लाइन के मुख्तलिफ शोबों का दौरा करते हुए मजीद बेहतरी के अहकामात भी जारी किए गए। प्रेस क्लब हासिलपुर कायम खानी मीडिया ग्रुप का इजलास ज़ेर सदारत सदर फयाज खोखर मुनक़िद हुआ, जिसमें साल 2025 के नौ मुंतखब ओहदेदारान का ऐलान किया गया। जुल्फ़िकार अली कायम खानी चेयरमैन, फयाज खोखर सदर, आसिफ आज़ाद जनरल सेक्रेटरी और दीगर मेंबरान शामिल हैं। रहनुमाओं ने हक और सच की आवाज़ बुलंद करने और मजलूम की मदद पर जोर दिया। ऐलान किया गया कि रवायती तौर पर इस साल भी एक सहाफ़ी को उम्रे की अदायगी के लिए रवाना किया जाएगा। इजलास में सहाफ़ी बरादरी ने बड़ी तादाद में शिरकत की। पुलिस थाना कहूटा की साई में कार्रवाई के दौरान 300 लीटर कशीदा देसी शराब बरामद करके एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। SDPO कहूटा की हिदायत पर सब इंस्पेक्टर अब्दुल हमीद और फरुख चौहान की टीम ने छापा मारा। गिरफ्तार मुलजिम ताहिर महमूद गांव के बाहर डेरे पर गैर कानूनी शराब कशीद करके फरोख्त करता था। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तहकीकात का आगाज कर दिया गया। ओकाड़ा में पुलिस मुकाबले के दौरान डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गया, जबकि 3 डाकू फरार होने में कामयाब हो गए। तफसीलात के मुताबिक 4 मुसल्लह डाकुओं ने शहरी से नकदी और मोबाइल फोन छीनकर फरार होने की कोशिश की। पुलिस ने ताक़ुब किया। डाकुओं ने पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग की। पुलिस की जवाबी कार्रवाई पर एक डाकू हलाक, मोटरसाइकिल और असलहा बरामद कर लिया गया। फरार डाकुओं की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी गई हैं। थाना कोटवादा किशन पुलिस का फूलनगर में पुलिस मुकाबला हुआ। शहरी के कत्ल में मुलविस 2 टारगेट किलर्स हलाक कर दिए गए। पुलिस ने 48 घंटों में जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से केस ट्रेस किया। छापे के दौरान मुलजिम ने अपने ही साथियों को फायरिंग से जख्मी किया, ताहम पुलिस ने बहादुरी से उसे गिरफ्तार कर लिया। जख्मी टारगेट किलर को अस्पताल ले जाते हुए दम तोड़ दिया। मीरपुर खास में डिवीजनल कमिश्नर फैसल अहमद अकीली ने कराची के मुखिर हजरात की जानिब से फराहम करदा गर्म स्वेटर्स और जैकेट्स यतीम और बेसहारा बच्चों में तकसीम किए। इस मौका पर मेयर अब्दुल रऊफ गौरी, जिला कौंसिल मेंबर खादिम हुसैन बहरानी और दीगर मौजूदीन भी मौजूद थे।
کمشنر فیصل احمد عقیلی نے کہا کہ یتیم اور بے سہارا بچے پیار اور شفقت کے حقدار ہیں اور انسانی ہمدردی کا درد رکھنے والے افراد ان کی مدد کے لیے آگے آنا چاہیے۔ ضلع بھاول نگر میں ایگری ٹاپ کی ڈسٹریبیوشن تقریب ایم صدی کاٹن فیکٹری میں منعقد ہوئی، جس میں علاقہ کے معززین، کسانوں اور دیگر افراد نے شرکت کی۔ ایگری ٹاپ عزیز گروپ کی پیسٹیسائیڈ کمپنی نے کسانوں کی فصلوں کی پیداوار بڑھانے میں اپنی خدمات پر روشنی ڈالی۔ تقریب کے مہمان خصوصی حافظ پیر مسعود قاسم قاسمی تھے اور ایگری ٹاپ کی جنرل مینیجر ربیہ خالد نے بھی شرکت کی۔ کسانوں کو درپیش مسائل پر گفتگو کی گئی اور ایگری ٹاپ کے عزم کو سراہا گیا۔ خیرپور کے تحصیل فیض گنج کے شہر بھنگو بہن کے سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار بن گئی۔ مزید تفصیل بتائیں گے ریاض بلوچ۔ جی ریاض بتائیے گا۔ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں تحصیل فیض گنج کے شہر بھنگو بہن میں۔ بھنگو بہن ہر بنیادی سہولیات سے بڑا خستحالی کا شکار ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں تحصیل فیض گنج اور بھنگو بہن کو ملوانے والی جو مین سڑک ہے وہ بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ کئی سالوں سے وہ سڑک بھی نہ بن سکی۔ علاقے مکینوں کا یہی کہنا ہے کہ ہمیں پکا چانگ جانے میں بڑی مشکلاتیں پیش آتی ہیں، گاڑیوں کے ٹائر پھٹ جاتے ہیں۔ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ بھنگو بہن سے لے کے گاؤں فقیر محمد امین تک جو سڑک ہے وہ بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ اس کا بھی کام کئی سالوں سے کوئی بھی ریپیرنگ کا بھی کام نہیں ہوا۔ علاقے مکینوں کا یہی کہنا ہے اور تاجروں کا یہی کہنا ہے یہ سڑکیں نہ بننے کی وجہ سے کاروبار پہ بھی جو اثرات ہے وہ بھی بڑے خسارے کے پڑے ہیں، اور شہریوں کا یہ بھی کہنا ہے اس سڑک پہ مٹی کی وجہ سے گرمیوں کی موسم میں ہمیں دکانوں پہ بیٹھنا بھی بڑی مشکل کی بات ہوتی ہے۔ جی ریاض بلوچ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ مزید آپ کو بتاتے چلیں کنکوٹ میں بڑھتی ہوئی بدامنی، ڈکیتی، اغوا برائے تاوان اور شہریوں سے لوٹ مار کی وارداتوں نے زندگی اجیرن کر دی۔ شہری ایکشن کمیٹی کی جانب سے شٹر ڈاؤن ہڑتال کی کال پر کاروباری حضرات نے دکانیں بند کر دیں، جس سے شہر مکمل طور پر بند ہو گیا۔ اس صورتحال نے دور دراز علاقوں سے آنے والے افراد کو بھی شدید مشکلات میں ڈال دیا۔ کپرو میں دادا علی بخش درس کے انتقال کے بعد قرآن خوانی اور پگڑی کی رسم منعقد ہوئی، جس میں مختلف برادریوں کے افراد نے شرکت کی۔ اس موقع پر سٹی چیئرمین کپرو اور دیگر اہم شخصیات بھی موجود تھے۔ اسپیشل ٹی وی سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں صرف اور صرف اسپیشل ٹی وی۔